Hello students, I hope you all are fine. So today we are going to start with our mock test. It's a midterm mock test some students have attempted, and please verify your mistakes, and if you haven't solved yet, solve it side by side and test yourself that how much you know and what are the new things you are going to learn. Okay, let's start. So the first question, if if the given figure shows the graph of polynomial y equals to ax square plus bx plus c, then figure is given to you as per the graph, and this is the general form of the polynomial. Which of the following condition is correct and why? A is less than 0 in case of downward parabola, है ना? A is less than 0. C option is absolutely correct. I think there is a voice. Okay, why this option is incorrect? A option. Because if b square is less than 4ac, what will happen? You know, there are two different points on which this parabola intersect on x-axis, right? So there are distinct zeros, means there are two different roots. So b square minus 4ac is greater than 0 and b square is greater than 4ac. But here it is less than 4ac, so it is wrong. What about the next option? Why this is wrong? When we extend this graph, what we will get? We will get the negative axis of y, negative y-axis, where c is less than 0, right? So this is also wrong. A and B are of same sign? No, A and B are of not same sign. Okay? They must be having a opposite sign for the downward parabola. So A less than 0 is absolutely correct option. Done. This is not directly given in your exercise, but the topic when the chapter starts na in your book, in first or second page, there is a theoretical concepts, geometrical concept of polynomial. From there, this question has come. Okay, and also came in the board exam. किसी साल में आया था. Next, second one. If the linear equations 2x plus 3y equals to 5 and 4ky minus 1 minus 3k times x equals to 6k plus 2. There are two equations and we have to check. Coincident lines are given to us. Such a condition is given to us. We have to find the value of k. What is the condition for coincident lines? A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. Right? Means coefficient of x in both the equations 2 upon minus 1 plus 3k. Very carefully write it. Ana, minus 1 and minus minus plus 3k. Don't write x. Don't write, only write the coefficient. Don't write the variables. Okay. B1 is 3 and B2 is 4k. C1 is 5 here. C2 is 6k plus 2. Right? Equate any two of them and you can easily calculate the value of k. For example, if we solve this, we get 8k equals to minus 3 plus 9k. 8k minus 9k equals to minus 3. Minus k equals to minus 3. Minus minus cancel out. We get value of k is 3. Done. Next one.
The length of the median through A of triangle ABC with vertices A, B, C is. Okay. नहीं कुछ पता लग रहा, ट्रायंगल का पता है, पहले ट्रायंगल बना लो. मेक ए ट्रायंगल. Write down the vertices A, that is 7 comma minus 3. B, which is given to you, that is 5 comma 3, है ना. C, that is 3 comma minus 1. Now थोड़ा क्लैरिटी हुआ अब आपको. लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस इज. A से एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए यहां पर. ओके. I don't have a ruler, so I'm not able to draw the proper line, but it doesn't matter. Just you have to solve it. रफ फिगर ही का आपने बनाना होता पेपर में. Don't worry about that. मीडियन क्या होता है? Maybe you have learned in your 9th grade or 8th grade that what is the ये जो मीडियन क्या करता है? It divides the line into two equal parts. Suppose we let this is D point. Okay. So BD and DC are equal. And you know, if BD and DC are equal, then D is the midpoint. You have to calculate the length of the median. What you have to calculate? Length of median means AD. And AD you can calculate by distance formula. But before that, you have to calculate the coordinates of D. How will you able to find the coordinates of D? By midpoint formula, right? This is x1, y1. Take it as x2, y2. You can calculate the values. X equals to 5 plus 3 upon 2. Y equals to y1 plus y2. Plus minus minus. So this is 4 comma 1 upon solving. So D point is 4 comma 1. Now calculate the distance. You will get the length of the median. Okay. 7 minus 4 whole square plus minus 3 minus 1 whole square. Nine plus 16 equals to 25, which is 5. So your answer is 5 units. Done? Clear? Next one. A pair of dice is thrown simultaneously. Let E denotes the event. E denotes the event. The sum of the numbers obtained on the dice is at least 9. The number of outcomes in the favor of event E. Carefully read the statement. They are not asking the probability on both dice at least 9. They are asking the number of outcomes which are favorable. Okay. Make the sample space quickly. Whenever you get the question of die, like head, tail wala, coin wala question, if you get, firstly make the sample space. कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, पहले सैंपल स्पेस बनाओ. और पेपर देख के एकदम से स्ट्रेस नहीं ले लेना, ये क्या आ गया वो आ गया, आपको सब कुछ ही आता है. बात यार पैनिक इसलिए क्रिएट कर देते हो क्योंकि आपको वो वाले क्वेश्चन आप पहले देख लेते हो जो आपको नहीं आते या फिर जो नहीं आ रहे, तो उसके चक्कर में जो आपको आ रहा है वो भी आप खराब कर देते हो. सो बेटर यही है, जो पहले आपको ठीक लग रहा है वही करो, सब कुछ हो जाता होता है. ठीक है. व्हेन यू हैव अ कूल माइंड इन योर एग्जाम, सब कुछ ठीक होता है. 4 4 4 5 4 6 और फर्स्ट डाई पे 5 आ गया. 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5. Done with the sample space? Yes. 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 and 6,6. Done. अगर आपको लग रहा है कि मैं आई एम राइटिंग स्मॉल फॉन्ट है या फिर, तो आप जूम कर लो, जूम इन योर स्क्रीन. ओके. अब उसने बोला क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन डाइस इज एट लीस्ट 9. एट लीस्ट मतलब कम से कम 9 तो हो, 9 से ज्यादा वाले जितने मर्जी हो सकता है आपका सम. ठीक है. चेक करो. यहां पर तो नहीं है, यहां पर मैक्सिमम लास्ट वाला चेक करोगे 7 आ रहा है, उससे ऊपर वाले छोटे ही हैं. यहां पर 8 तक आ रहा है, यहां पर 9 तक आ रहा है, एटलीस्ट 9.
ये वाला तो आप उठाओगे उठाओगे। अब इसमें यस, 9, 9 वाला आ गया। 9, 9, 9 से बड़े वाले सारे आएंगे, ठीक है। कितने आ गए, काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, सो आवर आंसर इज 10। डन, इजी। नेक्स्ट वन। अगर आपका रह रहता है, स्किप हो जाता है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी अगेन, ओके, डोंट वरी। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स इन द A and B, the HCF of A and B is a factor of LCM of A and B। देखो क्या बोल रहा है, दो नेचुरल नंबर है A and B। मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया एक 9 ले लिया और एक 10 ले लिया, चलो सपोज करो। HCF of A and B is a factor of LCM, निकाल लो। 3 into 3 into 1। एग्जाम्पल लेके करोगे तो इजीली हो जाता है। HCF क्या है, HCF is 1 and LCM हाईएस्ट पावर फैक्टर है ना, 3, 2, 5, 9, 10, 90। 90 इज एलसीएम। वो क्या बोल रहा है, टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी। कौन से दो नेचुरल नंबर आपके पास, यू हैव 9 and 10। एंड एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर है, यस। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, 1 इज अ फैक्टर ऑफ 90 है ना, ए assertion इज ट्रू। एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 9 and 10, और उसका एचसीएफ क्या है, 1। एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर्स क्या आया, 1। वो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, यस। 1 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0, 1 को 10 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0। ओके, डन। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus 5y minus 4 equals to 0, 15x plus 25y minus 25 equals to 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबको आना ही चाहिए ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की, नो सोल्यूशन होता है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट। लेट्स चेक इट्स कंसिस्टेंट और नॉट। 3/15 a1/a2, b1/b2 is 5/25, c1/c2 is -4/25। इसको करोगे 1/5 इक्वल्स टू 1/5 नॉट इक्वल्स टू -4/25। डन। सो कंडीशन सेटिस्फाइड, A is true and R is also true। We have justified the condition as per the inconsistency। R is also true and both A and R are true and R is correct explanation of A। Done, ठीक है। सेवंथ वाला। Median marks of students in a class test is 16। Yes, it means half of the class got marks less than 16। Yes, absolutely correct statement। Median divides the distribution into two equal parts। Absolutely correct। Both A and R are true and R is correct explanation of A। Next one, eighth। If three coins are tossed together, probability of getting at least one head is 7/8। मैंने बोला है, whenever you have the sum of probability, whatever the things they have asked, even the deck of 52 cards, coin, dice, whatever they have asked, just make the sample space first। थ्री coins toss किए, sample space बना लो। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। देख लो कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, कुछ रह तो नहीं गया। दो कॉइन्स टॉस करने हैं हमने, दो कॉइन है ना, सॉरी थ्री कॉइन्स टॉस करने, सॉरी वी आर टॉसिंग द थ्री कॉइन्स है ना। और एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं, टेल और हेड। जितने आउटकम्स होते हैं, जितने आउटकम्स
एक कॉइन के और कितने कॉइन्स आप टॉस कर रहे हो, यू आर टॉसिंग 3 कॉइन्स, उसकी पावर कर दो, ठीक है। सो 2 raised to power 3 इज 8, आपके 8 आउटकम्स आने वाले हैं और 8 हमने बना लिए। दिस इज द वे टू चेक, ठीक है। अब देखो, इफ 3 coins आर टॉस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज 7/8। एक हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/8। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक आए, एक से ज्यादा जितने मर्जी आ रहे हैं, ये भी आएगा। दिस ऑल्सो ट्रू, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, सो 7/8, दिस इज ट्रू। देर आर 16 सैंपल स्पेसिस व्हेन वी टॉस अ कॉइन, रॉन्ग। 8 आउटकम्स है हमारे पास व्हेन वी टॉस अ कॉइन, विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है वो, ठीक है। R is wrong, so A is true and R is false. Done. क्या डिफिकल्ट है एमसीक्यू में, नथिंग, जस्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है आपने, है वही चीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। चले आगे, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये चैट बॉक्स में क्या लिख रहा है, ओके, हाँ करेंगे वो भी इसके बाद। चलो नेक्स्ट देखो, two numbers are in the ratio 4:5 and their HCF is 11. Find the LCM of these numbers. दो नंबर्स है रेशियो में 4:5, नंबर नहीं दिए 4 5, रेशियो दी हुई है नंबर्स की, ठीक है। लेट कर लो, लेट नंबर्स भी जो जो दिया है वो साथ साथ लिख लो, लेट नंबर्स बी 4x एंड 5x। उसके बाद और क्या बोल रहा है, HCF इज 11, ओके, एलसीएम ढूंढना है हमने, ठीक है। अब देखो दो नंबर्स हैं आपके पास, वन इज 4x, वन इज 5x, है ना। 4 into x एंड 5 into x, ठीक है। 11 उसका HCF है, ठीक है। 11 उसका HCF है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बिकॉज 11 इज अ फैक्टर ऑफ 4x एंड 5x ना, x की वैल्यू 11 आ गई हमारे पास। सो HCF 11, यहां से इंडिकेट हो गया x हमारा 11 है, 11 इज अ फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ, यू नो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट किसका, दो नंबर्स का। और दो नंबर्स क्या है हमारे पास, देखो अब जब 11 आ गया, 11 यहां पर पुट करो 44, 11 into 5 55, दो नंबर्स आ गए आपके पास। डन। HCF 11, LCM we don't know, we have to find the value of LCM. LCM will be 11 ones are 11 4, 4 fives are 20, 200. Okay, okay, there is a 55. Please see, there is a 55. Okay. Thank you, Jay. 50. So it's 220. Okay. LCM is 220. Write the answer line at the last. So LCM is 220. Done. चलो, इसका तो साथ ही दिया हुआ, अच्छा। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7, सॉल्यूशन साथ ही दे दिया है। 0 है, 1 2 3 4, ये आपने ग्राफ कर लिया रफली, पहले अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया, उस पे अपने 1 2 3 4 नेगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस सब कुछ कर दिया, ठीक है। देन व्हाट यू हैव डन, x इक्वल्स टू 5 मींस 5 से एक लाइन पास कर गई, ऐसे जा रही, ठीक है। y इक्वल टू 7, जहां पर 7 है आपका y कोऑर्डिनेट पे, वहां से लाइन पास करा दो। वेयर दे टू लाइंस इंटरसेक्ट, प्लॉट द पॉइंट देयर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस जस्ट केम इन 2 मार्क्स, है ना। डन। Don't forget to write x-axis, x dash, y dash, whatever the things required, please write it down.
You can also write like this is a point, and so a that is 5,7 is the solution. ठीक है, is the intersecting point you can write. Done. If x comma 0 divides the line segment joining the points 2 comma 8 and minus 3 comma 5 in a certain ratio, find the ratio. Again, very easy question directly from the NCERT. एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स वो जरूर करके जानी होती हैं, एग्जांपल भी पेपर में आ सकती हैं, डोंट इग्नोर देम. ओके, रेशियो वी डोंट नो, yesterday also we had done in class. Ratio whenever not given we take as k ratio 1. Okay, y वाला पहले लगा लो, उसमें 0 जल्दी कैंसिल हो जाएगा. y इक्वल्स टू 5. y वाला पहले लगा लो फॉर्मूला, यू नो m1 y2 प्लस, बच्चे क्या करते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 लगाई जा रहे हैं. y का कोऑर्डिनेट निकाल तो y वाले ही आएंगे सारे, बी केयरफुल. ओके, 0 वैल्यू ऑफ m1, this is m1, this is m2, this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2. Done. So k multiplied with minus 5, what you will get? K multiplied with minus 5 minus 5k. m2 multiplied by y1, m2 is 1, y1 is 8, what you will get? 8. Good. K plus 1 will be multiplied on other side 0. So 5k equals to 8. This implies k equals to 8 by 5. So ratio is k is to 1 is 8 by 5 ratio 1. Eight is to 5. This is the required ratio. Now what else you have to do? Calculate the values of x coordinate. X equal to m1 x2, that is k into minus 3, minus 3k, m2 x1. No. Now you have found the value of k na? यहाँ पर now write the ratio what you have found. P point दोबारा से फिगर बना लेना, पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है. 2,8 minus 3. नहीं, ये नहीं कि फिगर के मार्क्स मिलने या नहीं मिलने, एटलीस्ट प्रेजेंट एवरीथिंग टू द टीचर. टीचर को मौका नहीं देना अपने मार्क्स डिडक्ट कराने का. क्लियर? m1 x2 plus m2 x1. गुड. ये आ गया -24 प्लस 10 अपॉन 13 -14 अपॉन 13. So x is -14 upon 13. Done. Let's move to the next question. देख लो एक बार से क्या किया हमने. इसमें पहले रेशियो निकाल ली, k रेशियो 1 लेट कर लिया. वी हैव कैलकुलेटेड द रेशियो. y कोऑर्डिनेट 0, इसलिए y से स्टार्ट करेंगे. अगर y एक्सिस होता तो x 0 होना था, तो फिर x वाला कोऑर्डिनेट लेके करना. ये पता है ना आपको, पहले x को लेके बैठे रहो, k निकल नहीं रहा. Don't waste your time in the paper. If you know that trick how to start it, then please follow that. Don't try to do any kind of experiment in the exam time. Okay? जो आपने सीखा वैसे अप्लाई करो जाके. एक्सपेरिमेंट एग्जाम से पहले करते हैं, करके देखो आ रहा है कि नहीं. बाद में पेपर बोलोगे कि पेपर छूट गया, ये हो गया. ठीक है, मोर द प्रैक्टिस, मोर द कंसिस्टेंसी, बेटर मार्क्स यू विल गेट. ठीक है, और एक रात में, एक ओवरनाइट दैट यू आर स्टडिंग एंड यू से दैट मेरे मार्क्स नहीं, ऐसे नहीं होता. ठीक है,
चलो, हार्डवर्क करना पड़ता है, पढ़ना ही है, और क्या करना है आपको, इतना मुश्किल क्या काम है ये। रोज प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स है अपने टीचर से क्लियर करो। चलो ये देखो 12th वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल मीन ही निकालना है। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute was recorded and summarized as follows: find the mean heartbeats per minute for these women choosing the suitable method। हाँ जी, let's start। Class interval is given to us and number of women, that is frequency, is given to us। We can solve it with direct method। वैसे assumed mean भी लग जाएगा, डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। 66.5 में सारी वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पर। 69.5, 72.5। टैली करते रहना अपना अपना, ठीक है। 81.5, 84.5। नाउ फाइंड एफ आई एक्स आई वेरी क्विकली। हाँ जी, फाइंड करो। टेक 2 minutes, फाइंड इट, देन आई विल राइट द वैल्यूज, चेक योर वैल्यूज। ओके। स्टार्ट राइटिंग, साइड बाय साइड आप भी करी जाओ बेटा। रफ में करके देख लेना, या नो माइंड में करी जाओ, और बाद में बोलो कहाँ गलती है, प्रेशर में हो जाता होता है ऐसे फिर। वैसे इसमें अज्यूम्ड मीन लगा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 608, 78.5 इंटू 7 कितना आएगा? 549.5, आई थिंक इतना ही आएगा ये, ठीक है। 81.5। कितना आ गया? कितना? डन। 169 आ गया। हम्म यहाँ पर मेंशन करोगे आप बाय डायरेक्ट मेथड। अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट ही लिखोगे। मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब उसका जो सम, समेशन एफ आई, समेशन एफ एक्स, एफ आई तो हमें पता क्या है। नाउ एफ आई एक्स आई, फाइंड द समेशन ऑफ इट एंड टेल मी क्या आ रहा है आपका, फिर मैच करो। आई थिंक ये 2281 कितना बन रहा है मेरा, तो 76.03 अपॉन कैलकुलेशन। गिवन क्या था? हार्ट बीट्स थी ना, तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे बेटा हार्ट बीट्स पर मिनट। अब हार्ट बीट्स है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो उसको तो डेसिमल में नहीं लिखोगे, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको, यू कैन राइट इज 76 हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, डन। आंसर चेक कर लो अपना। नेक्स्ट वन करें, नेक्स्ट वाला। वॉइस तो ठीक है यार मेरी तरफ से। वेट, लेट मी चेक। नाउ इट्स क्लियर। लीव द क्लास एंड ज्वाइन अगेन। मे बी देर इज a network problem on your side।
चलो, a lot consists of 144 ballpoint pens, out of which 20 are defective, out of which 20 are defective and others good. Tanvi will buy a pen if it is good. Tanvi तभी pen buy करेगी जब वो good होगा, and will not buy if defective. Shopkeeper draws one pen at random and gives to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? इसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मत फाइंड करना, 3 मार्क्स में पेपर में आएगा तो ऐसे सारा लिखना है. बॉल पॉइंट अगर नहीं मेंशन करना तो सीधा पेन लिख दो. नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 144. डिफेक्टिव पेन्स आर 20. गुड पेन्स कितने हुए आउट ऑफ 144? इफ डिफेक्टिव आर 20, 144 माइनस 20. स्टेप्स बेटा शो करने पेपर में, ठीक है. हाँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट द फॉर्मूला. ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू. शी विल बाय इट इफ इट इज गुड पेन, 124 अपॉन, हाँ जी, 144. सिंप्लीफाई इट. 3136, हाँ जी, 31/36. This is the probability that she will buy it. Now the probability she will not buy it. If the pen is defective, then she will not buy it. Probability 20 upon 144. 5 upon 36. ओके. वैसे एक और इसका है, जो प्रोबेबिलिटी आई आपकी बाय करने की, शी विल नॉट बाय इट, 1 में से माइनस कर दो, वो भी आ रहा था. यू नो द कॉन्सेप्ट ना. ठीक है, चले आगे. चलो डन. ठीक है, हाँ. फॉर विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स ए बी एंड सीज आर कंपोजिट नंबर्स? हाँ जी, ए बी, इसमें से कंपोजिट कौन से वो चेक करने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये ना. आप एक कोई टिक कर दो गेस वर्क के साथ, सारे चेक करने हैं. क्या पता सारे कंपोजिट हो, क्या पता कोई भी कंपोजिट ना हो. यू हैव टू चेक इट. स्टेप्स शो करने हैं तभी मार्क्स मिलेंगे. 7 into 11, 77 into 11. इसको सॉल्व करो पहले. 77 into 13 कितना आ गया इसमें? ये तो बुक का ही लग रहा है मुझे तो. हाँ, बुक का ही. 13 1014, and it is divisible by 2. This is composite. 6 5 is 13, 2 4 120, 120 plus 4, that is 124. This is divisible by 2 से तो divisible है, इवन नंबर है डायरेक्ट, और किसी से देखना भी नहीं है. अगर divisible है then directly it is composite. ठीक है. 3 7 13 7 91 plus 6, हाँ 97. ये नहीं किसी टेबल पे आता नहीं ना, हाँ ये प्राइम नंबर है. सो चेक करके ऐसे लिख देना है. सो ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर्स एंड सी इज प्राइम नंबर. वो भी मेंशन कर दो अगर करना है तो. ठीक है, यही पूछा था, ए कौन सा कंपोजिट है इसमें से. चलो, वेरी इजी. 15th क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का, तो फेवरेट है. रूट डल गया यहाँ पर, √2. कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, इजी है. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² plus 5 √2x minus 3 by फैक्टराइजेशन मेथड. अगर फैक्टराइजेशन बोला, फैक्टराइजेशन से ही करना है. एंड ऑल्सो फाइंड द रिलेशनशिप. समटाइम्स स्टूडेंट्स फैक्टराइज इट बट फॉरगेट टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. दोनों चीजें करके आनी है, ठीक है. अच्छा, सम क्या आना चाहिए इसमें? 5 √2 एंड प्रोडक्ट, दैट इज 4 × 3x² का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म यू हैव टू चेक. बच्चे ये देखते हैं, ये देखना भूल जाते हैं. 4 × -3 -12. ओके, साइन भी ध्यान रखना है. ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट -12 हो एंड सम 5 √2. हाँ जी, कौन से दो नंबर है? हम्म. अगर मैं
-√2x करूँ, 6√2 और -√2, 5√2 आ गया। 6√2 इंटू √2 करूंगा, 6 2 12 आ गया, है ना, -12। यहां पर आपको दिक्कत आएगी कि इसको रूट को कॉमन कैसे निकालना, नहीं आता आपको, मुझे पता है कई बच्चों को नहीं आता। देखो अब ध्यान से, कईयों को कॉमन ही नहीं निकालना था, जो चीज कॉमन निकलती है वो अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है आपको, मुझे पता है। अब एक 2 को आप √2 इंटू √2 लिख लो। मैंने इसको क्या किया, इसको √2 इंटू √2 लिख दिया, वो 2 एज इट इज ही रहा। कॉमन निकालो चलो अब, इसमें से कॉमन निकालना है। आई एम यूजिंग द डिफरेंट पेन सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। और इसमें से आप कॉमन निकालो चलो। इसमें से तो √2, देखो, एक √2 और एक 2 का मल्टीपल, हाँ, 2 3 6। अगर आप इसको 3 इंटू 2 लिख लो तो इजी हो जाएगा। √2, 2 √2 कॉमन आ गया। अगर आपका 2 और √2 कॉमन आ गया, बचा गया अंदर, एक्स भी कॉमन आ गया, हाँ, √2x। इधर क्या बचा, +3। इधर -1 कॉमन निकाल लो, कुछ भी नंबर तो दिख नहीं रहा, √2 माइनस ही कॉमन निकलेगा, ठीक है। =0 लेना होता है यहाँ पर, ठीक है। सो √2x + 3 = 0। अगर जीरोस निकालनी तो वो 0 के इक्वल करना है, वैसे तो उसने फैक्टराइज ही बोला था, ठीक है। फैक्टराइज हो गया, अगर जीरोस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, फैक्टराइज बोला था कि जीरोस, चेक कर लो बेटा एक बार। हाँ, जीरोस फाइंड करनी है, ठीक है ठीक है। ये आ गया -3/√2, 2√2x - 1 = 0। 2√2x = 1, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/2√2। कोशिश करनी होती है कि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में ना हो, तो आप रैशनलाइज कर सकते हो इसको, ठीक है। फटाफट से वेरिफिकेशन कर लें अब चलो। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b/a, -3/√2 प्लस 1/2√2, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई सम के लिए। और राइट साइड इधर लिख देते हैं -b/a, विच इज -b है। अच्छा, ये देखो इधर, 5√2 इज b एंड दिस इज a। -5√2/4 बनना चाहिए आपकी, ये लेफ्ट साइड सॉल्व करके देखो। दिस इज 2√2, 2 इज मिसिंग हियर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 +1, क्या आ गया देखो, -5/2√2, वो तो कुछ और आ रहा है, कोई बात नहीं। -5/2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या आया देखो, -5√2 अपॉन 2 2 = 4, √2 इंटू √2 2 एंड 2 इंटू 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस वॉज अवर राइट हैंड साइड, -b/a हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट को भी वेरिफिकेशन कर लो, -3/√2 इंटू 1/2√2। राइट साइड was supposed to be c/a, what is c here, -3। चेक कर लो एक बार, -3 था ना ऊपर, -3 एंड a is 4। अब ये बनाना है आपने, राइट साइड तो मैंने लिख दी सीधा ही, -3, √2 इंटू √2 2 2 4 आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया, लास्ट पे हैंस वेरीफाइड लिख देना फिर, ठीक है, से हो रहता है। आपने ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी पेपर में, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपने आंसर्स चेक कर लो, वट एवर यू हैव सॉल्व्ड इन द मॉक टेस्ट, ओके, डन। चलो।
ये दो क्वेश्चन है चॉइस में आए थे, है ना। पहले ये वाला देख लेते, चलो 16th वाला। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। आप पढ़ के आते हो, 9th क्लास में डाल सकते हैं, टीचर ये नहीं बोल सकते लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड ये वाला सम कैसे आ गया पेपर में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी वो होती है आपकी, प्रॉपर्टी लाइक ABCD opposite angles are sum of opposite angles are is 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। इक्वेशन बना लो, पहले हम 16th वाला सॉल्व करेंगे। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज 2x माइनस 1, एंगल C इज 2y प्लस 15 डिग्री। मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा फास्ट रहना आप भी। 2x प्लस 2y प्लस 15 माइनस 1 प्लस 14 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। बेटा रिपीट थोड़ा इम्पॉसिबल है अभी, क्योंकि आप पॉज करके वीडियो दोबारा देख लेना, यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो। हाँ जी, 2x प्लस 2y, 180 माइनस 14 कर दो, क्या रहेगा 166। 2 कॉमन निकालो, 2 उधर डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 83। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एंगल बी प्लस एंगल डी, उसका भी सम क्या आएगा 180 डिग्री। करके देखो जरा, एक मिनट। y प्लस 5, 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x प्लस वाई, 5 माइनस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 180। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है आपने, ताकि इक्वेशन में कोई गड़बड़ ना कर दो। इक्वेशन गलत तो सम गलत, सारा ध्यान रखना। 182 आ गया यहाँ पर। इतनी बनी इक्वेशंस आपकी भी चेक कर लो। मार्क इट एज 1, मार्क इट एज 2। एलिमिनेशन से कर रहा हूं मैं फटाफट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो आप, वट एवर द मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे। एलिमिनेशन से जल्दी हो जाना है, देखो यहाँ पर सेम टर्म्स बन गई। क्या करेंगे अब, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम इधर, ठीक है। यहाँ पर लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड, वट एवर द मेथड यू आर फॉलोइंग ना, वो भी मेंशन करो यहाँ साइड पे, बाय एलिमिनेशन मेथड। वाई वाई कैंसल आउट, -3x -182, कितना 99 होएगा ना इधर, हाँ चेक कर लो, -99 आ गया। माइनस माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू 99/3 कितना आ गया 33। x की वैल्यू 33 आ गई है। पुट कर दो किसी इक्वेशन में, 1 में पुट कर रहा हूं मैं। 33 प्लस वाई, लिख लो यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 33 इन 1 इक्वल्स टू 83 था। y इक्वल्स टू 83 माइनस 33, y इक्वल्स टू 60, ठीक है। व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इन दिस, 4 एंगल्स ढूंढने, वैल्यूज पुट कर दो अब सब में, ठीक है। व्हाट वाज योर एंगल ए, व्हाट वाज योर एंगल बी सी डी देखो, और एक्स वाई जो भी है पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2x माइनस 1, y प्लस 5, दिस इज y प्लस 5, ठीक है। एंगल सी वॉस 2y प्लस 15, एंगल डी 4x माइनस 7। स्टेटमेंट पहले लिख लिया करो ना, क्लू वहां पर ऊपर करूंगा स्क्रॉल, ऊपर देखना पड़ेगा उधर। वैल्यू पुट कर दो जो भी आई आपकी, ठीक है। 2 इंटू 6 33, 66, 66 माइनस 1 65, y is 60, 60 plus 5 is 65 degree. Okay. There is some error, 8 3 इधर 5 आना बेटा, 50 आना है इधर, ठीक कर लो। 50 प्लस 55 डिग्री, ठीक है। 2
50 plus 15, 100 plus 15, that is 115 degree. Now we are left with D. D angle 4x is 33 minus 7. हाँ जी, कितना आ गया इधर? 132 माइनस 7 कितना आ गया? 125 डिग्री। आप प्लस करके देख लो, एंगल ए और एंगल सी 180 बन रहा है, एंगल बी और एंगल डी प्लस करके देख लो 180 बन रहा है, देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्स वाई तो आएगा, वो वैल्यू पुट करके देख सकते हो आप। डन। दूसरा वाला कर लोगे, करा दूं चॉइस वाला? मुझे लगता है वो तो कर लिया ना, इसमें 16th वाले में प्रॉब्लम आई होगी आपको। चलो बता देता हूँ वो भी, इक्वेशन कैसे बननी है मैं बता देता हूँ, बाकी सॉल्व कर लेना। इक्वेशन मैं बना देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, क्या आना वेरीफाई कर लेना। के देखो, Jaya scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each correct answer. 40 marks आ रहे हैं उसके टेस्ट में, 3 marks correct answer के हैं, and she is losing 1 mark for each incorrect answer है। ठीक है, 4 marks being awarded for each correct answer and 2 marks were deducted for each incorrect answer. Then Jaya again would have scored 40 marks। मतलब दो conditions हैं, दो बार उसने टेस्ट दिया और दोनों बार उसके 40 marks आए। फर्स्ट टाइम व्हाट वाज हैपेंड, 3 marks, कंडीशंस क्या है, करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स है, इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क है। सेकेंड बार जब उसने टेस्ट दिया, देन फॉर द करेक्ट आंसर 4 मार्क्स वर अवॉर्डेड टू हर, एंड इफ शी हैज डन द आंसर इनकरेक्ट, आंसर विच शी अटेम्प्टेड एंड इट गॉट इनकरेक्टेड, देन शी 2 मार्क्स वर डिडक्टेड। जीरो नहीं मिलता, सो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? जो फाइंड करना है वो यहां पर लिख लो। लेट नंबर ऑफ correct questions number of incorrect questions, ये x ले लो, ये y ले लो, एज पर द कंडीशन। अगर उसके मार्क्स, जैसे करेक्ट आंसर के लिए शी इज गेटिंग 3 मार्क्स है ना, 3x नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस उसके 3x, और कितने, हाँ 1 शी इज लॉसिंग मार्क्स इन फर्स्ट कंडीशन, तो माइनस y, माइनस ही होंगे ना उसमें से, 40 उसका आ गया टोटल है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारी बन गई। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर है ना, -2y, एंड शी इज गेटिंग 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इन सेकेंड कंडीशन है ना। 4x - 2y इक्वल्स टू, अगेन शी स्कोर्ड 40 ना, 4x - 2, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 कॉमन आ गया, 2x - y इक्वल्स टू 40। बच्चे उधर 40 लगा रहने देते हैं और 2 रिमूव कर देते हैं एज इट इज, ऐसे नहीं करना, 2 उधर जाके डिवाइड होके कटिंग करो उसकी, फिर आपका इक्वेशन बनती है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं यूजुअली। दिस वाज योर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। सॉल्व करोगे, अपॉन सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 20। चेक कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, इक्वेशन का बताना था मैंने आपको कैसे बनी। ठीक है, सो लास्ट पे लिखना भी है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स आर 20 एंड करेक्ट इनकरेक्ट आंसर आर इनकरेक्ट आंसर्स आर आल्सो 20। डन, कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट करते हैं, टाइम कम बच रहा है अभी। ये देखते 17th वाला। इफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट AB
एक पॉइंट है, लाइन सेगमेंट एबी को डिवाइड कर रहा है, सपोज द पॉइंट इज पी, पॉइंट को पी ले लिया मैंने यहाँ पर, 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है वो। 3,4 कोऑर्डिनेट्स लिख लो, ए के और बी के मैंने लिख दिए, ए के 3,4 एंड बी के 6, 1:2 रेशो, लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कैसे करेंगे देखो। पहले तो आप x और y की वैल्यू निकालो जरा, सेक्शन फॉर्मूला से जिस भी फॉर्म में आए। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। लेबल कर लो, m1 m2 x1 y1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने थे, p का गिवन था आपको, नहीं p के निकालने, उसको कुछ नहीं बोला, बस लाइन डिवाइड कर रही है। हाँ, आपने k की वैल्यू ढूंढनी है बेसिकली, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब m1 क्या है 1, x2 क्या k, 1 into k आ गया, ठीक है। m2 इज योर 2, व्हाट इज x1 3, 2 into 3 दैट इज 6, m1 k थोड़ी था इधर, अच्छा 1 into k किया आपने, ठीक है। नहीं बेटा वो k नहीं है, हाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो, 1 + 2, दिस इज k प्लस 6/3, डन। x की वैल्यू डन। नाउ देखो y की, m1 1, 1 into y2 दैट इज 6, प्लस m2 इज 2, y1 is 4, 2 into 4 is 8, वेरी गुड। 1 + 2, ये आ गया 14/3। अब जो लाइन आपको क्या बोला है, x प्लस वाई माइनस, कुछ नहीं पेपर में आ रहा, स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हो, ये ऐसी इक्वेशन देख ली, कैसा सम आ गया, डोंट गेट कंफ्यूज, रेशो आई है ना, सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, कुछ ऐसा करना है, वो तो कुछ अटेम्प्ट करके आओगे ना पेपर में, ये इक्वेशन देख के छोड़ मत आना सम को कि ये क्या आ गया है वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है बेटा, ठीक है। x की वैल्यू k प्लस 6/3 प्लस y की वैल्यू क्या है 14/3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब आगे देखो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया आपका 3 k + 6, 14 के नीचे 3 ऑलरेडी, एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -10, 1 तो मल्टीप्लाई 3, इधर भी 3 से कर दो, 3 बनाने के लिए 30, नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर भी, कई बच्चों को एलसीएम भी नहीं लेना आता बेटा, प्लीज बी केयरफुल इन अपनी कैलकुलेशंस, अगर वीक है तो प्लीज उसको इंप्रूव करो, ठीक है। अपने टीचर के साथ डाउट डिस्कस करो, एंड डोंट हेजिटेट इन डिस्कसिंग योर डाउट्स विद द टीचर, कुछ नहीं कहेंगे आपको वो, ठीक है। 3 उधर जाके 0 हो गया, k - 10 इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू 10 आ गई, डन। इजी था ये तो, 3 मार्क्स में ये भी आया था, ठीक है, डन। करें आगे, 1 मिनट रुको। हाँ जी, उनको बोलो कि उनको बोलो बाद में मुझे कॉल करे, हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 18th वाला, कितने रह गए आगे क्वेश्चन उसके, बस फटाफट करते हैं, बस मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बस फटाफट देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया, मीन दिया हुआ है, जो दिया वो लिख लो, ठीक है अपने पास, अगर आपको मीन दिया मीन लिख लो अपने पास, 57.6, ठीक है। और क्या दिया आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू आपको 50 दे रखी है उन्हें ना। चलो टेबल बना लेते हैं, CI 0 to 20, फ्रीक्वेंसी, देन आपको क्या दिया, एक्स आई आप करोगे ना फाइंड, फिर FI डायरेक्ट मेथड से ही कर लेंगे इसको, आपने F1 और F2 ढूंढनी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। 20 to 40, 40 to 60, बेटा आवाज ठीक है आपकी तरफ से, नेटवर्क प्रॉब्लम है, चेक करो, 80 to 100, 100 to 120, F की वैल्यू 7, F1
12, F2 8 5, ठीक है। अब मिड वैल्यू आपको पता ही है, एड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस 20 बाय 2 10, 30 आ गया, 50 70, 90 एंड दिस इज 110। मल्टीप्लाई कर दो, 70 fi इंटू एक्स आई, मल्टीप्लाई ईच अदर, 30 f1, 12 इंटू 5 60, 600 आ गया। चेक करी जाओ वैल्यूज बेटा, 9 8 72 720 550। ओके, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, आपका ना मिक्स हो जाएगा फिर यहाँ पर, फिर वो वाला, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे अपना समेशन एफ आई एक्स आई जो भी है। यहाँ पर आपका समेशन एफ आई वो तो आपको पता ही है क्या है, 50, इसको प्लस करोगे आप पहले, ठीक है। ये हो गया। 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 8 कितना हो गया आपका, 27 प्लस 5 32 हो गया, ठीक है। 32 प्लस F1 प्लस F2। मुझे आंसर नहीं पता बेटा इसका क्या आ रहा है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना इसका, मैं आपके साथ चेक कर रहा हूँ, ये आप अपना चेक करना फिर, ठीक है। 19 8 27 32 प्लस F1 प्लस F2, वैसे ये वैल्यू है किसके इक्वल, 50 ऑब्जर्वेशंस थी। यहां से एक इक्वेशन बना लो, 18 इक्वल्स टू F1 प्लस F2। इक्वेशन बन गया आपके पास एक, इसको मार्क कर लो एक। यहां पर समेशन एफ एक्स एक्स आई की वैल्यू निकालो, देखो 70 प्लस 600 6, 670 670 प्लस, इसको कर लो, क्या करता है ऐड, आके देखो जरा। हाँ जी, सारा ऐड अप कर लो उसको, F1 F2 मत बीच में ऐड कर देना, वो अलग से प्लस करके ऐसे लिखना है, F1 F2 के साथ, वो मल्टीप्लीकेशन में उसके साथ ऐसे ही रहेगा, डोंट ऐड देम। बेटा हाई लेवल का नहीं है ये। 1940 आ रहा है इधर देखो, ये आएगा 1940 प्लस 30 F1 और 70 F2, एज इट इज ही लिखना है इसको, 100 लिख के 1940 पे प्लस मत कर देना, ठीक है। करते हैं बच्चे ऐसी मिस्टेक। चलो देखो अब इधर डायरेक्ट मेथड ही लगाया है, मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई 1940, अगेन मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैंने पीछे भी एक सम करवाया था, ऑलरेडी मेंशन द फॉर्मूला देयर, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार, यहां पर आप समेशन एफ आई की 50 वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और मीन आपको पता है बेटा, मीन कितना है, 57, कहाँ गया, 57.6, सॉल्व करो, 57.6 इक्वल्स टू 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन 50, 57.6, 50 will be multiplied with this, 30 F1 plus 70 F2, okay, 57.6 इंटू 50, करो जल्दी, 5 से मल्टीप्लाई करो, जीरो को कर लेना एडजस्ट, क्या आएगा, 2880। 576 का हाफ कर दो, वैसे आपको ट्रिक बताई हुई है, -1940 इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2, 2880 -1940, करो माइनस, क्या आता है, 940 आ जाएगा। इक्वेशन में देखो इवन नंबर सारे आ रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को, देखो 2 के टेबल पे, नहीं 2 के टेबल पे कर लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। 470 इक्वल्स टू, 2 से डिवाइड कर दो सबको, F1 35 F2, 5 के टेबल पे अगेन कॉमन निकल रहा है, स्टेप बाय स्टेप कर लो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता, ठीक है। अगर 5 के टेबल पे मैं कर रहा हूं, आप डायरेक्ट 5 पे ही कॉमन निकालो, चलो ऐसे करते हैं। 3 पे तो 70 जाता नहीं है, 940 भी नहीं जाता, तो 5 पे आप कर लो डायरेक्ट, ठीक है।
मुझे लगता है आपने ऊपर से वैल्यू बेटा कोई गलत लिखी है, इसलिए नहीं आ रहा। 940 ही आना है यहाँ पर। 30 F1 प्लस 70 F2। 940 एज इट इज ही आप लिखो यहाँ पर, ठीक है। 5 कॉमन, अब 10 कॉमन निकालो बेटा, 10 से हो जाएगा फिर 3 F1 प्लस 7 F2। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। इक्वेशन बची आपकी 3 F1 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू 94। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ आपको, चेक कर लेना अपना, ठीक है। क्या आंसर लिख दूं? चलो कर देता हूँ सॉल्व। F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 18। 3 F1 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू 94। या F1 को सेम कर लो वेरिएबल, या उसका सेम कर लो, देख लो जिसका मर्जी कर लो। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1 से। 3 F1 प्लस 3 F2 इक्वल्स टू 18। 3 सा 54 आ गया। 3 F1 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू 94। ठीक है, साइन चेंज कर दो, एलिमिनेशन से होगा, सेम साइन है तो ऑपोजिट करने पड़ेंगे, माइनस का माइनस का, ये भी माइनस का, कैंसल। 3 माइनस 7 माइनस 4 F2 इक्वल्स टू 5 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 40 आ गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट, F2 आ गया 10। F2 10 आ गया, पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। F1 प्लस F2 18 था बेटा, यहाँ पर F2 की वैल्यू 10 प्लस कर दो इक्वल्स टू 18। F1 आ गया आपका 18 माइनस 10, F1 इज 8। अब वहां पर वैल्यूज पुट करके देख लो, 10 और 8 50 बन रहा है, तो आपका करेक्ट है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। ठीक है, अगर ये चॉइस में आएगा ये वाले क्वेश्चन को बाद में हैंडल करना, अगर डायरेक्ट मीडियन मोड पूछा तो वो करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला बाद में हाथ लगाना, कैलकुलेटिव होता है थोड़ा, बड़े ही ध्यान से करना होता है। ठीक है, डन, बस करें फिर। चलो ये वाला देखते हैं फिर, लास्ट 5 मिनट्स बस, अब जो हो गया देख लो फिर। किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, then the cards are well shuffled. One card is drawn at random from the remaining cards. Find the probability of getting a heart, king, club, 6 of heart. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। क्वीन, जैक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। एक रह गया ना आपका, कौन सा रह गया? एस। एस को 1 मत बोल देना, नंबर कार्ड नहीं है वो वाला। ये वाले जो इतने हैं ये आपके क्या है? नंबर कार्ड्स। ये आपके क्या है? नंबर कार्ड्स। और ये वाले क्या है? फेस कार्ड्स। रेड कलर के कौन कौन से हैं? 4 टाइप्स होती है ना इसकी। स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। इन दोनों का कलर रेड है, इन दोनों का कलर ब्लैक। हर किसी में 13 पेयर। 13 × 4 कितने? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड्स हैं, वो बोल रहा है कि किंग क्वीन जैक क्लब के रिमूव कर दिए उसने, तो कितने कार्ड्स बचे? 49। हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जब आप 49 कार्ड्स आपके पास है तो? बोलो। किंग क्वीन जैक रिमूव हुआ बेटा। हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? वो क्लब का हुआ है, हाँ जी। हार्ट की प्रोबेबिलिटी बताओ। हम्म अच्छा, करना कैसे? डायरेक्ट आंसर मत लिखना ना, पहले प्रेजेंट कर देना अपना, जैसे टोटल कार्ड्स आर 52। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द कार्ड्स रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे? 14। आफ्टर रिमूविंग वो लाइन लिख के, मेरे पास टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा। हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 13/49। ठीक है, किंग की प्रोबेबिलिटी, अब किंग देखो टोटल 4 है, एक स्पेड में, एक क्लब में, एक डायमंड में, एक हार्ट में। अब क्या हुआ? एक किंग तो क्लब का निकल गया, है ना, तो 3 किंग बचे हमारे पास। आंसर इज 3/49। क्लब की प्रोबेबिलिटी, क्लब में से 3 कार्ड्स रिमूव हो गए, टोटल 13 है, क्या आया? 10/49। 6 ऑफ हार्ट,
हार्ट में से 6 एक ही नंबर है और वो रिमूव भी नहीं हुआ, 1/49। ठीक है, डन। एनी डाउट? चलो लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी है पॉलिनोमियल्स की, इजी है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस that follow. An object which is thrown or projected into the air subject to only acceleration due to gravity is called projectile। 11th का टॉपिक आप पढ़ोगे वहां जाके, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ होता है जैसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, ठीक है। इट्स पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, जितना पाथ उसने फॉलो किया उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड पाथ वाज शोन बाय, किसने शो किया? गैलीलियो ने शो किया था, टू बी अ पैराबोला बोलते हैं उसको। पैराबोला को पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इफ द पॉलिनोमियल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड इज, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। कुछ नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ भेजा, ऐसा पैराबोलिक पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है। किसने इन्वेंशन की वो बता रहा है, उससे वैसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने सम से मतलब है, जो करना है वैसे पता होना चाहिए किसने कौन सी इन्वेंशन की है, क्या किया है। एवरी टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग ना, आपको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कैसे इन्वेंशन हुई, अब क्या चेंजेस आए वगैरह वगैरह, ठीक है। बट आप लोग इन डेप्थ जाते नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट्स रह गए, मैंने आपको 5 मिनट्स बोले थे, 2 मिनट रह गए, फटाफट करिए। ये polynomial is given to you, what is the degree of the polynomial? Degree is the highest power, here highest power is 2, so answer is 2। What is the height of projectile at the time of 4 seconds after it is launched? ये कैसे करोगे? टाइम 4 सेकेंड्स, देखो ना इधर p ऑफ t इक्वल टू समथिंग दिया है, t मतलब कि t टाइम है, यहां पर t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर वैल्यू पुट करोगे, देखो क्या आएगा, यहां पे बता दूं ऊपर, p ऑफ 4 इक्वल्स टू माइनस, जहां पर t है उसकी जगह क्या पुट करोगे? 4। पेन चेंज कर लो, 1 मिनट, कंफ्यूज ना हो रहा फिर आप, 1 मिनट लगा। चलो, 4 4 द 16, 16 5 द 80, माइनस साइन ध्यान रखना, लगाना है इधर, भूल मत जाना। -80 + 1 60, 80 + 1.2 दैट इज, हाँ जी 81.2। ढूंढनी क्या हाइट, मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा है उसमें? नहीं लिखा तो आप क्या लिखोगे? यूनिट्स, UNITS, ठीक है। 81.2 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं लिखोगे साथ तो हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है, ठीक है, प्लीज बी केयरफुल। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स डिग्री? पॉलिनोमियल का नेम बताओ बेटा। 2 मार्क्स में तो इसको एक्सप्लेन कर दो साथ ही, ठीक है। आप लिख दो इट्स डिग्री इज 2, सो इट इज, टाइम हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट पार्ट रह गया और वाला, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, डन। केस स्टडी वाज नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? फैक्टर्स निकालने भी आपको पता ही है बेटा, ये तो -3 -2 करेंगे तो हो जाना ये वाला। x-3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यूज क्या आ गई बेटा? 3। केस स्टडी वाज वेरी इजी, केस स्टडी डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, आई होप कुछ आपको समझ आया है और अपनी मिस्टेक्स आपको पता लगी हैं, ठीक है। चलो, अगर कोई मिस्टेक रह गई, कोई कैलकुलेशन मेरी तरफ से आपकी तरफ से, प्लीज कमेंट या आप मुझे मैसेज कर देना, वी विल रेक्टिफाई इट। वैसे तो चलो हो गया, कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, डन। चलो, अपनी बस कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी बढ़ाओ। ओके, देख लो, आपने 1.5 घंटे का एग्जाम था तो आपने कितना टाइम लगाया, क्या छूटा था, और हमने कितने टाइम में किया, और हो सकता है पॉसिबल है, इट वॉज पॉसिबल टू कंप्लीट इट इन 1.5 आवर, 40 मार्क्स पेपर, ओके, डन। ओके, हाँ एक और चीज, एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, जो पहले आता वो पहले करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बी केयरफुल, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।